ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज भी मैं अपने कुछ और गुरुओं का स्मरण कर रही हूँ और उनके साथ की जो मेरी यात्रा थी उसके बारे में कुछ आपके साथ बातें साझा करना चाह रही हूँ। It's such a pleasure to speak about gurus who somewhere or other not only taught me dance, but they also contributed in giving me so much else. As I said earlier in my earlier sessions, it's wonderful to remain ever grateful in life to people who contributed in whatever degree. ये एक बहुत बड़ा सद्गुण मुझे भगवती ने दिया है और मेरे संस्कारों ने दिया है, मेरे परिवार ने दिया है। तो आज मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि भरतनाट्यम की जो यात्रा शुरू हुई और जब मैं बीच बीच में बेंगलोर से बम्बई आती रही, एल्फिंस्टन कॉलेज ज्वाइन किया 1959 में। 1961 में अरंगेत्रम हुआ बम्बई में, बेंगलोर में, राजभवन में। दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू। एंड देन आई हैड ऑल्सो mentioned that with my Bharatanatyam Guruji, Krishna Rao sir and Chandamma, their permission and in fact their encouragement, I continued my dance practice. It had gone wonky. Now it is straight. It was like that. In life so many things go wonky and we have to straighten them. तो मेरी माता जी ने बम्बई में फिर पता किया और धीरू भाई देसाई जो मेरे पिताजी के दोस्त थे, the three Padmash friends, my father and Dhiru Bhai Desai and Chanchi Mehta. So Dhiru Bhai's friend was Soli Batliwala, a Parsi gentleman, but who was in love with Indian culture and traditions. And of course, by today's or any standards, a liberal. तो माता जी ने सोली भाई को पूछा, and Soli Bhai by then was helping Madhuri Desai, Dhiru Bhai's wife, widow rather, to run the institute in the name of the father-in-law, Bhula Bhai Desai, who was my grandfather's partner at one time and great friend. Okay, I'm telling you the link to again bring history back. इतिहास के पन्ने हमें निरंतर खोलने चाहिए। हमें समझ में आता है कि हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं और आगे का रास्ता कैसा है। It's again gone wonky. So आज सोली भाई ने उनसे कहा कि मेरे यहाँ जयलक्ष्मी आलवा, so it's like that, you know, we've been today, it's not here. Anyway, now leave it. It's like this. Oh, leave it now, leave it please. Okay, thank you. It's okay, thank you. ये भी होता है ना यूँ और एक यूँ होता है, तो कैमरा भी कभी कभी घूम जाता है। Jayalakshmi Alva was teaching Bharatanatyam in Bhula Bhai Desai Institute, situated on prime location on Beach Candy in Bombay. She was already teaching a lot of girls and some boys, and later Wahida Rahman also learned from her, and Jabeen Jalil at one time, a small-time actress.
apart from many others. There was Maya Kulkarni also, who was in my college, Elphinstone, and later on shifted to America, USA, and I believe got a big name as economist, if I remember well. Anyway, so Soli Bhai told my mother, she'll be a good teacher as long as Sonal is here in Bombay, and then when she goes to Bangalore and all. So my gurus in Bangalore were very happy. They spoke to Jayaji, and I started my classes. Now she was a very strict teacher. She was the first शिष्या. वो सबसे पहली शिष्या थी गुरु दंडायुधपाणि पिल्लई की, जिनके बारे में मैंने बताया था। रुक्मिणी देवी के कला क्षेत्र में भी गुरु दंडायुधपाणि पिल्लई ने सिखाया था, और बाद में वो वैजयंती माला जी के भी गुरु रहे। जयलक्ष्मी जी सबसे पहली शिष्या थी, और जयलक्ष्मी जी ने बहुत सीखा, विशेष करके जो यानी द स्पेशलिटी ऑफ गुरु दंडायुधपाणि पिल्लई, द jatis and tirmanams, the complex rhythmic permutation combinations, which are the speciality of Bharatanatyam in any case. तो ये हुआ कि मेरे क्लासेस शुरू हुए, और उन्होंने मुझे जो जो सिखाया, अभी बस उनके यानी आई वाज टेकिंग फॉरवर्ड माय भरतनाट्यम फ्रॉम बैंगलोर टू बॉम्बे, बॉम्बे टू बैंगलोर। 1961 में मेरा अरंगेत्रम जब हो गया था बैंगलोर में, तो उसके बाद की ये बात है, 61, let's say from August onwards. 1962 में already Jayaji and her husband Ramakrishna Alva, they came to the Harkishan Das Hospital, I remember, where my grandfather was convalescing, और मैं कॉलेज से सीधी वहाँ जाती थी। तो आप दोनों आए, मेरी माता जी को उन्होंने कहा कि कैन वी प्लीज़ टेक हर एज वसंतवल्ली, एक जो डांस ड्रामा उनके गुरु का लिखा हुआ, जयलक्ष्मी जी के गुरु का लिखा हुआ चित्रम्बलम कुरवंजी. The Kuravanjis are very, very popular in Tamil Nadu. They are the traditional choreographies, dance dramas, where always a princess who is in love with either the king or Shiva or Vishnu. All these are euphemisms. And then the unrequited love, the Kurati, the gypsy woman from the Eastern Ghats comes and reads her palm and assures her after some nakhras that indeed she will be united with the lover, with the beloved. तो ये जो कुरवंजियाँ होती हैं आज भी, उसका आई थिंक कला क्षेत्र के फेस्टिवल में और यहाँ वहाँ आप देख सकते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट कुरवंजीज, कुट्रालो कुरवंजी. ये कुरवंजी जयलक्ष्मी जी अपने गुरु की लिखी हुई करने जा रही थी. और वसंतवली द प्रिंसेस, द राजकुमारी के लिए उन्होंने मेरे लिए माँ से पूछा. माँ थोड़ी सी घबराई हुई थी, कह रहे कि बहुत यानी इस पे भार हो जाएगा ये वो. मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी. और उसकी भी ट्रेनिंग शुरू हुई और उसका पहला जो प्रोग्राम हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, वो भुलाभाई देसाई इंस्टीट्यूट के टेरेस में. देयर वाज अ टेरेस स्टेज और भल भले बम्बई के उस वक़्त के प्रतिष्ठित नामी कलाकार और लोग आए थे देखने. उस वक़्त की यादें बहुत लोगों को आज भी ताज़ी हैं. मैं यहाँ पे कुंडे बना के, कोई विशेष फ़ोटो है नहीं, इतनी फ़ोटोज़ उस वक़्त की, लेकिन बहुत मुझे याद है कि क्या क्या वो जो गाने थे तमिल में लिखे हुए. खैर आगे चलती हूँ. तो मेरी ट्रेनिंग चालू रही बेंगलोर में भी, बम्बई में भी, बेंगलोर में भी. आई वॉज between the two, but my gurus in Bangalore never interfered
and never changed anything that Jaya Lakshmi ji taught me. I showed them, and Jaya Lakshmi ji never changed anything that my gurus taught me. This kind of respect for each other. Of course, my gurus were much older than Jaya Lakshmi ji, and I would say even more eminent and famous. Alva, जो उनकी सरनेम थी, that put my mother's mind in a little confusion कि आलवा यानी क्रिश्चियन है क्या? तो सोली भाई ने बताया कि ना, ये जो कोस्टल बेल्ट है कर्नाटक का, वहाँ पर आलवा सरनेम होती है और बहुत पुराने ये सरनेम वाले फैमिलीज़ वहाँ हैं. तो रामकृष्ण आलवा उनके हस्बैंड, मुझे याद है, पतले, तो उनको फोक डांसेस में बड़ा इंटरेस्ट था और बड़ी उनका एक वायरी शरीर था, यू नो, लाइक वेरी वेरी सपल. और जयलक्ष्मी जी थोड़ी गटकी हो गई थी, उनकी बेटी आरती और छोटा बेटा अमर. 1962 में ही एक और बहुत सुंदर चीज़ हुई कि इसमें दिवाली की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टी थी या समर वेकेशन था, जिसमें मैं बेंगलोर भी गई और उसके बाद आई जॉइन जयलक्ष्मी जी, हर हस्बैंड एंड द 2 children, and I think another 4 students and me and the driver in one big Ford car. F-O-R-D, Ford होती थी बड़ी. Can you imagine? कभी मैं इसकी गोद में, कभी कोई मेरी गोद में, लेकिन हम कहाँ कहाँ गए. रामेश्वरम, मदुरई, तांजोर, चिदम्बरम, कुंभकोणम, विड़ीपुरम, कांचीपुरम एंड मद्रास. मुझे याद है कुंभकोणम भानुमति, प्रख्यात देवदासी, उनके घर में भी हम ठहरे थे. मुझे याद है कि कैसे हम कुएं से पानी निकाल के नहाते थे. मुझे याद है कि ट्रिची, तिरुचिरापल्ली, वहाँ फोर्ट गणेश के दर्शन किए और फिर हम लोग श्रीरंगम गए, जो कावेरी के 2 जो शाखाएं बन जाती हैं. कावेरी रिवर, द ब्यूटीफुल ग्रेट रिवर, वन ऑफ द सप्त नदियाँ, जिसको हम हमेशा याद करते हैं सारे हमारे उत्सवों में और घट स्थापन में. उनका पहले नाम लिया जाता है 7 नदियों का, उसमें कावेरी भी है दक्षिण की. तो वहाँ उसके 2, it breaks into 2 and this island is called श्रीरंगम. वहाँ श्री रंगनाथ स्वामी का अति प्राचीन सुंदर मंदिर है और श्री रंगनाथ स्वामी इज़ द लाइन 1, लेकिन आंखें खुली हैं, सो नहीं रहे. और वहीं पर द ग्रेट लेजेंड ऑफ आंडार, गोदा देवी, जो चीफ पुजारी की बेटी थी और जो रंगनाथ स्वामी के प्रेम में थी बचपन से. उनके पिताजी फ्रेश फूलों की माला, हार वगैरह बना के ले जाते थे मंदिर. और एक दिन ये जो कुमारी थी, कन्या, उसने कहा कि पिताजी मैं भी बना देती हूँ, मैं भी हेल्प करती हूँ, एज चिल्ड्रन आर ट्रेन टू हेल्प. और जब पिताजी इधर उधर हुए तो उसको तो स्वप्न भी आया था कि मेरा विवाह हो रहा है श्री रंगनाथ के साथ. उसने ये हार लेके खुद पहना, मैं कैसी दिख रही हूँ. फिर पिताजी के आने की आहट को ही हार निकाल दिया और वो सारा लेकर सेवा में गए पिताजी. और जब वो हार पहनाने लगे तो बाकियों ने भी हल्ला किया. वहाँ से एक बाल निकला, लंबा काला, कन्या का. अनर्थ हो गया. अरे बाप रे, पाप शांतम पापम, जो भी कहा होगा. और उनको बहुत ही सुनाई गई बातें. वो मंदिर में आई और उन्होंने क्षमा मांगते 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 जो भी हुआ है, कहा जाता है कि वो श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति में समा गई. That she merged in the idol, in the Ranganatha Swami. And this is celebrated even today
and there is a lot of Tamil literature written by her father Periyalvar, the first among 64 Vaishnavite great saints. श्रीरंगम के मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हम लोग कावेरी में नहाने गए. मुझे याद है कि खूब नहाए, स्वच्छ पानी, और उसके जो पट था द बालू का, वहाँ कपड़े धो धो के सुखाए, धूप में बैठे. अरे मुझे आज भी वो मस्ती याद है. और बाद में कावेरी के दर्शन हुए, लेकिन अब वो कावेरी 1962 की और आज की, जिन पे निरंतर वाद विवाद होता है, तमिलनाडु और कर्नाटक और वगैरह वगैरह. ये नदियों की आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा यदि हम नदी को देवी मानते हैं, लोक माता मानते हैं. कहने के लिए तो है, कभी सोचा है कि नदी की आत्मा को कितना दुख हम पहुंचा रहे हैं. खैर चलो, तो ऐसे करके फिर हम लोग दर्शन करते 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 मद्रास पहुँचे, और जया बहन जी के उनके पेरेंटल होम में, उनकी बड़ी बहन भी थी वहाँ ठहरे. वही जो कुएं से पानी निकालना, रसोई करना, बर्तन साफ करना और प्रैक्टिस करना. द हाईलाइट वाज कि उन्होंने गुरु को बुलाया, दंडोदपाणी पिल्लई आए, और जया बहन जी की जो समवयस्क कला, डॉक्टर कला, पौंडीचेरी में थी उनके हस्बैंड के साथ, उसको बुलाया, और उन दोनों ने अपने गुरु के सामने नृत्य किया. गुरु नटवांगम कर रहे हैं, और हम लोग सब बैठ के देख रहे थे कि जया बहन जी कड़क हैं, शी इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, बट लुक एट हर गुरु, बाप रे बाप रे बाप. इवन विद दैट heavy body, Jaya Bahan ji ki Anga Shuddha was something to be delighted about. और उसी के बाद उसी 1962 में आखिर में, before we returned to Bombay, हमारा कार्यक्रम भी जया बहन जी ने करवाया था चिल्ड्रंस थिएटर में. आज भी चिल्ड्रंस थिएटर है, आज भी I believe there are other kind of festivals happening there. तो उसमें ब्यूटी क्या थी कि जया जी के साथ गुरु दंडोदपाणी पिल्लई भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी नटवांगम किया. कैन यू इमेजिन कि वो क्या रहा होगा. मेरे कुछ मित्र हैं मद्रास में, डांसर्स, हु स्टिल रिमेंबर दैट. और उस वक़्त में सोनल पकवासा थी, उसकी जो फोटोज़ हैं, मैं और श्रीलेखा, अनदर स्टूडेंट, मेरे पहले से थी जया बहन जी के पास, और हम लोगों ने क्या क्या किया मुझे याद थोड़ा बहुत है. Anyway, we came back to Bombay and I continued with her, so this was another highlight. A third thing that I remember very clearly, कि 1963 में जब मेरी फाइनल BA की एग्ज़ाम थी, चल रही थी, I was appearing in my final BA examination with German Literature Honours, Gujarati Substitute, and 2 papers, 1 paper like that. In the morning, I had finished 1 paper, the next day I had 2 papers. And at about, I think, 4 o'clock or something, 4 or 5, Jaya Bahanji appeared with her husband in a taxi, 4 o'clock. And she came up to our 3rd floor and said, Sonal, chalo, chalo, तुमको आज डांस करना है. मैंने कहा कहाँ? I was preparing for the next day, 2 papers. And she said, oh, Veena बीमार पड़ गई है, another dancer. And there was a program that evening for a visiting delegation at the United States Information Service, USIS. Oh my God, I said, अच्छा चलो, okay. गुरु ने बोला है तो जाना है. And I started ironing the costume. We prepared my little bag and हम लोग नीचे आए उस वक़्त our car came जिसमें मेरे पिताजी चला रहे थे, मेरे दादाजी बैठे थे, मेरी माताजी बैठी थी. They had gone for a meeting and my father was bringing them back. They got off and they said, हाँ क्या जाए से? माँ सबसे पहले माँ ही बोलती थी क्या जाए से. और जया बहन जी, her husband,
They said, हमारे साथ हम ले जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए. What program? अरे कल इसके पेपर्स हैं, ऐसे कैसे आप ले जा रहे हो? My mother was a little, तो दादाजी भी उतरे थे, उन्होंने दादाजी को भी प्रणाम किया, माँ पिताजी को किया. And while my father parked the car in the garage, they were trying to explain. So I only explained in Gujarati. क्या हुआ थયું? આ છોકરી માંદી છે અને યાર she is बीमार and they've come. I'll dance and come back. My mother said, पागल हो गई है? We were just standing. मेरे दादाजी ने कहा, नहीं इमरजेंसी है, कर लेने दो. उनके आए हैं ना, टीचर्स आए हैं, जाओ बेटा. My mother couldn't say anything. That's how, even though आजकल तो 9th और 8th और 10th की एग्जाम में तो यहाँ हु 6 महीना क्लास नहीं करना, 1 वर्ष ऑफ कर दो, ये सब चल रहा है. देख के मैं सर पटकती हूँ, हे भगवान क्या है ये? कोई पैशन नहीं, कोई कुछ नहीं. अभी एक इतनी सुंदर नृत्य कर रही थी 9th में, तो उसका नाक घुसा दिया उसके पिताजी ने, हैं पढ़ाई में, पढ़ाई करो. अच्छा जी आइंस्टाइन बनो, माय बेस्ट विशेस टू यू, बनिए. लेकिन ये क्या है कि यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन योर ओन चिल्ड्रन. यही बात हुई ना कि आपको अपने बच्चों की बुद्धि पे, उनकी क्षमता पे विश्वास नहीं है कि ये भी कर लेंगे, ये भी अच्छे से कर लेंगे. मैं गई और उस दिन का जो कार्यक्रम हुआ, चूंकि छोटा था, एक सवा घंटे का था, पुष्पांजलि तत्तोडगताम एंड तिशलारपू, और उसके बाद माँ मोहलागिरी वर्णम इन राग कमास और रूपक ताल. और वो वहाँ पे रीता चैटर्जी, अनदर सीनियर डांसर, अ कंटेम्पररी ऑफ इंद्राणी रहमान, शी यूज्ड टू राइट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, a highly respected critic, वो बैठी थी और उन्होंने जो दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यू दिया, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती क्या सुंदर रिव्यू दिया. खैर, तो ये जो कुछ मेरे मन में है कि कैसे हम लोग नेविगेट करते थे, how we navigated our life, our years, our passion, our education, our family. और जब मैं निकल गई, चली गई बाहर, फिर दिल्ली आ गई. बाद में जयलक्ष्मी जी एंड हर हस्बैंड फैमिली, दे मूव टू मैंगलोर. वहाँ उन्होंने अपना स्कूल खोला, डूइंग वेरी वेल. उन्होंने मुझे बुला के मेरा वहाँ सम्मान किया और मेरा अभिवादन किया पब्लिकली. मेरा कार्यक्रम हुआ, उडुपी मठ में भी हुआ, मंदिर में भी हुआ. और 1984, 1984, when I had that big festival I told you last time, where I invited my Bangalore gurus, I invited Jayalakshmi ji, and उसमें जो कार्यक्रम हुआ शाम को कमानी में, जयलक्ष्मी जी did the नटुअंगम for me, और मेरे दोनों गुरु और सामने बैठे थे. कितना यानी याद करती हूँ तो मेरा हृदय भर जाता है कि मैं कितनी भाग्यशाली रही, क्या क्या सीखा, बहुत सीखा. तो आज इनके बारे में मैंने आपको बताया. अब मैं आगे आपको ले जाती हूँ कि 1969 जब मैं ओडिसी ऑलरेडी कर रही थी. ओडिसी के बारे में मैं अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, आई स्टार्ट द ओडिसी. बट आई वॉज देयर इन मद्रास एंड वाईजी दोरेस्वामी, a great connoisseur and patron and a friend and advisor. So he said, I will bring Gauri Amma, you learn some padams. मेरा बराबर था ना, ओडिसी तो नया था, भरतनाट्यम पुराना था. So although I had learned padams from Jayaji and my gurus, Gauri Amma, the greatest name. याद रखिए आप लोग कि कहीं कहीं हमारा इतिहास भी निर्दय हो जाता है. It's a cruel history. We forget the great names because
They did not have event manager. They did not have a family to support them and talk about them. They did not have the state backing them. They die unsung and unhonored. इतना बड़ा नाम श्रीमती गौरी अम्मा, बाला सरस्वती से भी सीनियर, अभिनय साम्राज्ञी, द ओशन रत्नाकर ऑफ अभिनय, कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी माताजी दोरे कन्नम्माळ, उनका जब नृत्य होता था कापालीश्वर मंदिर में, तो विशेष करके भिक्षाटन शिव के ऊपर उनके जो नृत्य होते थे, पदम अभिनय होता था। भिक्षाटन शिव is one of the forms of Shiva, where he is the cosmic beggar. He is really not a beggar, but that because he is totally devoid of any desires, and that is where the dog is with him. तो भिक्षाटन शिव की अद्भुत एक कल्पना है, इमेज है, and there are so many पदम्स on that. आजकल कोई करता नहीं है शायद. Bala Saraswati herself and Dr. V. Raghavan, the great Sanskrit scholar and author and connoisseur, वो इसकी बात करते थे कि we were mesmerized by her, गौरी अम्मा's mother. और ये बात मुझे मेरी मित्र डॉक्टर राघवन की बेटी नंदिनी रमणी ने बताई. My dear friend Nandini Ramani in Chennai, and she said father and Bala, who was her guru, used to talk about Dore Kannammal. Now the daughter of Dore Kannammal, Gauri Amma, was the last Devadasi to dance in temple, Kapalishwar temple, the great temple in Chennai, in Madras. So wo tab tak, by the time 1969, when I had the great good fortune to learn from her 6 padams, 6 padam man. She had lost one eye. She was emaciated, dubli patli, सिकुड़ी हुई. तो उनको गाड़ी में ले आते थे और कुछ आधी इडली और इतनी कॉफ़ी ऐसे करके बैठती थी. मैं हमेशा उनको, और फिर जैसे ही उनको दोरे स्वामी जी पूछते थे तमिल में, अम्मा will you start? That little thing would blossom into a Nayika, a beautiful princess, a love-lorn maiden, a goddess. That is the magic of Abhinaya I have seen in front of my eyes, in just a very normal surrounding, from this emaciated, half-blind woman, the great Gauri Amma. And she would start singing, and what a voice! And her movements, Annam pol nadayar, Tattai Muriyar Orupen. When the Sakhi describes her love-lorn friend in that state of viraha, you describes it to the Nayaka, beloved. Come quickly. And what is she like? She's chatura, she's intelligent, she's beautiful. Even her walk is like a swan. And when she did that sitting, I can still see her. How that emaciated body heaved and moved just that much. You could see the glide and the heave of the swan, Hamsa. Like that, I learned 6 beautiful padams from her in Nilambari, in Nadanamakriya, Payyada, and Yadukula Kambodhi, Tamara Saksha, and Maname Bhushanam, Shankarabharanam, and Tate Muriyar in Kalyani. I cannot forget, but again,
मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ, मुझे इतना दुख है अंदर, और यदि मैं कुछ कर सकी तो मैं ज़रूर करूँगी। गौरी अम्मा का नाम आज कहीं नहीं है। रुक्मिणी देवी की भी गुरु, बाला सरस्वती की सीनियर, the last Devadasi to dance in any temple in South India. अभिनय रत्नाकर मैं उनको कहती हूँ। हमारी संगीत नाटक एकेडमी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इतने वर्षों से कहीं गौरी अम्मा का कोई नाम नहीं है। आप जानते हैं ना कि हो गया चैप्टर ओवर। चैप्टर इज नेवर ओवर, इट्स एन ऑनगोइंग ट्रेडिशन। और विशेष करके आज where we are all in a virtual space, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, in reality for me that virtual space is the internal space. ये यदि यहाँ पर खाली है तो यहाँ कुछ नहीं, बोलते जाइए, कुछ नहीं होगा, डांस कीजिए। अभिनय ये हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स का, हमारे नृत्य विधाओं का प्राण है, प्राण वही शक्ति है। आप उछल कूद कर लो, समरसॉल्ट्स मारो, पोजेस पोस्चर्स करो, अभंग त्रिभंग समभंग अतिभंग करते जाओ, अपनी ताकत बताइए। नटराज का पोज कर दिया, ये कर दिया, यस यस यस, अंत में क्या है? उसने भी किया, आपने भी किया, उसने भी किया, इसने भी किया, उसने। इस अभिनय जहां योर मेच्योरिटी, योर इंटरनलाइजेशन ऑफ योर लाइफ्स एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, अनुभव, ये सारा जो आपके अंदर चल रहा होता है, वो प्रकटीकरण जो है वो है अभिनय। अभिनयनी नयति, I'm communicating, conveying my insights to you. अब वो तो है ही नहीं अभी, बहुत यानी minuscule. क्यों? We have to think about it. दो बातें मैंने कही। गौरी अम्मा का मान सम्मान आदर आज भी नहीं हुआ है, हम करेंगे, होना ही पड़ेगा। जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पे पुरस्कार है, गौरी अम्मा के नाम पे अभिनय में पुरस्कार होना ही पड़ेगा। आई विल सी टू इट, आई इंसिस्ट ऑन इट। ये ना करें, मैं करूँगी। ये ऋण मात्र भरतनाट्यम का नहीं है, ये ऋण हम समस्त नृत्य जगत का है जो हमें चुकाना है। और दूसरी बात मैंने कही, इंटरनलाइजेशन एंड देन एक्सटर्नलाइजेशन, जो आजकल उसी की ज़रूरत आप समझते हैं। मैं जल्दी से आपको और दो नाम देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज़ है, द होल सीरीज इज़, एक मैंने कहा ना तर्पण टू माय दादाजी, माय पिताजी, माय माताजी, दिस इज़ ऑल्सो द तर्पण, ग्रैटिट्यूड टू माय गुरुज। उसमें गुरु वेम्पटी चिन्न सत्यम, द ग्रेट गुरु ऑफ कुचिपुड़ी, जिन्होंने पूरा मार्गम बनाया, जो कि कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा, एसेंशियली इट्स अ डांस थिएटर। और उन्होंने जो इसके जैसे कहते हैं टेक्निक, उसको भी बहुत सिस्टमेटाइज किया। तो जब मैं मद्रास में थी 1969 में, तो गौरी अम्मा से पदम भी सीख रही थी और गुरु वेम्पटी चिन्न सत्यम से कुचिपुड़ी थोड़ा सीखा। वो क्यों सीखा वो मैं बता रही हूँ। तो डॉक्टर टी.एन. रामचंद्रन, द ग्रेट स्कॉलर, और नाट्य शास्त्र पे उनका अधिकार, उनके पास में जो 108 नृत्यकरण हैं जो भगवान शिव ने और देवी नटेश्वरी ने उसका सर्जन किया है, उनके बारे में मैं जानने सीखने गई थी मद्रास में। तो पता चला मुझे करते करते
कि प्रत्येक नृत्य के करण में भरतनाट्यम, जो आज का कुचिपुड़ी और उड़ीसी, इन तीनों का मिश्रण मुझे दिखा। लेकिन कुचिपुड़ी सीख रही थी, इसीलिए मुझे समझ में आया कि जैसे उड़ीसा, लाइक यू नो दे आर कंटिग्यूअस एरियाज, उड़ीसा, Andhra, now today's Telangana and all that, I'm not going into that. So Orissa, the Andhra and Tamil Nadu. So like that, Odissi, Kuchipudi and Bharatanatyam. And they combine, there are so many movements that I could see in Karanas. So Dr. T.N. Ramachandran and Guru Vempati Chinna Satyam. तो उतने से समय में इतना सारा काम, आज भी मुझे आदत है कि इतने समय में इतना काम, और इतने समय में इतना काम ना करो तो लगता है कि मैंने अपने साथ छल किया है. आई एम चीटिंग माई सेल्फ एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ एंजॉइंग एनीथिंग. तो एक ये जो भाव रहता है उत्साह का, करने का, जानने का और धन्यवाद देने का, ये भाव अद्भुत होता है. इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग यू गेट, and it gives you profundity, it gives you calmness, it fills you with joy and enthusiasm and gratitude, gratitude, gratitude. I can go on repeating it like a mantra. ये मंत्र है, be grateful, you will never fail. The minute you say हो गया, अब क्या है, और कुदरत आपको नहीं माफ करती है, remember that. It's not me. Nature doesn't forgive you, because our life is a sequence of incidences, of relationships, जो इस जन्म में हमें सार्थक करनी है, समझनी है. So with that, I leave you today with my wholehearted naman to my gurus, Srimati Jayalakshmi Alva, Ma Gauriyamma, Guru Vempati Chinna Satyam and Dr. T.N. Ramachandran. बहुत बहुत धन्यवाद. बस अब 2 दिन की बात है. 17 तारीख को कहते हैं कि आप बाहर जा सकोगे. फिर याद दिलाती हूँ, ज़रूरी है, अभी भी वायरस गया नहीं है, तो प्रिकॉशंस लीजिए, सतर्क रहिए, भागम भाग मत कीजिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और काम को और बढ़ाइए. प्रणाम करती हूँ. May we all be happy, energetic and healthy. Thank you. Namaskar.